सिक्योरिटी की दो आपने जो है वो डायमेंशंस बताई, एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, एक जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ठीक हो गया? कैन समबडी बिल्ड अपॉन दैट? एक सेकेंड, नहीं, यस यू, आपसे बात हुई है पहले? नहीं, सिक्योरिटी वाला सवाल आपने, हाँ जल्दी से, ज़ोर से ज़ोर से ज़ोर से। ज़ोर से बात करें प्लीज़। किसी चीज़ के आपको जिम्मेदारी दे कि आप सिक्योरिटी कर सकते हैं, उसकी हिफाजत, किसी भी चीज़ की हिफाजत कर सकें। अच्छा, हम किस चीज़ की हिफाजत करते हैं या फिर किन चीज़ों की हिफाजत करते हैं? लाइब्रेरी है ना, हाँ इधर एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, अगर ये इसके जिम्मे में अगर कोई भी चोरी वगैरह हो गई तो सिक्योरिटी हाँ गार्ड, ठीक है, और यही लोग ठीक है, ओके। आप प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, ओके कूल। चाय ठंडी हो गई मेरी। कैन यू फर्दर एलाबोरेट दिस थिंग? सॉवरेनिटी Sovereignty is something else, security is something else. जब तक आपकी कम्युनिटी नहीं होगी तो आप सिक्योर कैसे होंगे? जब तक आपकी sovereignty नहीं होगी तब तक आपकी security नहीं होगी. That's what you are saying? Are you sure about it? Maybe I'll disappoint you in a while. आपने तो बात बता दी. अच्छा, कोई ऐसा है जो रह गया है? Anyone else who's left? Okay. Yes. Protection of rights to increase survival chances. Protection of rights to increase survival chances. You are telling me that you are comprehending security or linking it with the rights. One second. Protection of rights to increase survival chances. ठीक है. Can you explain it a bit? एग्जाम्पल है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन एज अ राइट ले हम, क्योंकि अगर हम बेसिक एजुकेशन से अब जैसे फर्दर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में जा रहे हैं, हम सेकेंडरी तक एजुकेशन की हायर एजुकेशन, तो वो हमारे फ्यूचर में हमें किस तरीके से स्टेबिलिटी दे रहा है और डेवलपमेंट दे रहा है। सही है. तो इस तरीके से भी सिक्योरिटी हो जाती है हमारे एक, मतलब अगर हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। ठीक है. और मतलब हम अवेयर होंगे तो फिर हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकें। सही है, मेक सेंस. ठीक है मैम. Basically, what comes in my mind, I'm not sure if it. It's all right, no problems. So basically, any individual doing his job in a perfect way somehow secures the country from different maybe worse situations. ठीक है. But this is not a clear answer to what I'm asking. I'm asking, what do you think when you hear this word security? Like safety, basically. Safety. Safety from what? As I said, there can be worse norms of a country. Agar there is black marketing, let's suppose. So basically, if there is a group of people who is making sure there is not any kind of black marketing in the country, so they are the people who are making sure the security of the country. This is what I can say. Would that be called, would that be fall in traditional security or non-traditional security? Traditionally. Okay. देखते हैं. सिक्योर अपने ओपिनियन देने के सोचना ना पड़े किसी भी स्टेट को। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही हैं? सिक्योरिटी को आप फ्रीडम ऑफ स्पीच से लिंक कर रही हैं? मतलब यू आर सेइंग दैट सिक्योरिटी इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से इट फ्रीली एंड वेयर एवर यू वॉन्ट टू से इट एंड विद whom you want to say it. ऐसा ही है? Okay, this can be nice background. This can be one aspect, but not entirely. This can be, we can consider it, but this is not the entire thing which we are talking about. Yes, Piyu. I would like to elaborate traditional
नहीं, पहले आंसर ये कि what do you think when you hear this word security? Security, instantly the thing comes to my mind are armed forces. Okay, Armed forces, how armed forces they protect your territory. okay. If armed forces will not protect your territory, you cannot have a state to live in, and you cannot secure yourself as a person. It means that you cannot identify yourself. So you are saying that our armed forces are the ones which comes in your mind whenever you hear this word security, right? Because they are actually securing the entire territory, and because of them we are in peace. This is what you are saying. Because of them, we are in peace or not, that is a bit controversial point. Okay, fair enough. But yes, the traditional security is the security of our territory. No, because of that, no, the point is very clear. I'm not getting into, please don't do that. It irritates me so much. What I'm asking what my point is that you are saying that armed forces are responsible for securing our territory. ठीक है, so they are securing it, and because of them we are preventing any sort of wars. ठीक है, broadly we can say that. सही है, there is no contradiction in this. See, I have told you this before as well. There are hundreds and hundreds of people, personals, ठीक है, armed forces personals who are there on the borders and on different places trying to secure us, so me and you can go to our homes and sleep peacefully, isn't it? Yes, it is. Despite everything, despite the issues we are facing, are either they are of political nature or non-political nature, every one of us, mostly, every one of us living at our places very peacefully. ठीक है, we sleep at our home without having this threat that somebody would actually, somebody would shot a missile in my home, or somebody would kill my children, right? Just like that, somebody would invade my privacy, and somebody would do something bad to my kids, as we are having in Palestine, in Kashmir, in other occupied territories, right? So we are having a secure territory. See, the concept of security is living without a danger, without a threat. So yeah, this is the basic thing. ठीक है, when you have this word of security, आप सोचेंगे कि this is तहफ़्फ़ुज़. सही है, तहफ़्फ़ुज़, आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़, आपके माल का तहफ़्फ़ुज़, और आपकी जो भी आपकी टेरिटरी है या आपकी जो जगह है, आपका घर है, उस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़. ठीक है, ये तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर चले गए ना. इन अ ब्रॉडर वे, व्हाट डू वी सी? वी आर लिविंग इन अ कंट्री, राइट? उस कंट्री की सिक्योरिटी ज़रूरी है. जैसे आपने ग्रुप की बात की कि सिक्योरिटी कैन बी टर्म्ड एज समथिंग like protecting a group of women or a group of somebody else, say students or somebody, right? So how about we consider all of us living in a group in one confined territory, say, and there are people who are there to protect us, ठीक है? They wouldn't let our security compromise. वरना जो है वो people from eastern border and people from western border, they will literally, not invade, actually they will infiltrate in us, and they will harm us in very enormous ways. ठीक है, in enormous ways. So the concept of security has been changed over the time. ठीक है, there were evolution, and then we have seen changes. Like earlier we used to think that the security basically confined to the secure country, right? And that's it. It's just like you are living in some random part of the earth, and then you are secure. In early civilization, people used to live in tribes, in the form of tribes. Even this day, people are living in the form of tribes. When you go to the northern side of Pakistan, and then you must have heard of Red Indians. Say, and then there are people who are living in South America, in Brazil, right? The natives of Brazil, say, Hispanic people, and so on. There are communities, confined communities, say, who are living on different, who are living in different areas, ठीक है, in one group form, and then there is somebody, and there are people who are securing them. When you expand this group, you have countries. When you further expand this group, you have region.
And then when you further increase this group, what do you have? World. सही है? Am I making sense to you? Do you understand what I'm saying? समझ आ रहा है? अच्छा, what exactly do you want? You want me to be bilingual or what? Continue like this? Bilingual? Okay. जब आप एक दायरा बनाते हैं, ठीक है? यार मुझे टिश्यूज़ चाहिए ना। सलीम साहब किधर चले गए? चैटिंग क्यों हो रही है? क्या हो गया? मैं चली गई हूँ क्लास से। नमाज बाजमात अदा करनी है। अच्छा 2 मिनट उसके बाद। सी दिस इज़ द फर्स्ट। एक सेकेंड, नहीं ये भी गंदा हो रहा है। ठीक है, ये हो गए आपके ट्राइब्स, कबीले, कम्युनिटी। ठीक है, ये हो गए आपकी कंट्रीज, स्टेट्स। ठीक है, ये हो गया आपका रीजन। ठीक हो गया? हाउ मेनी रीजन्स वी हैव? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स वी हैव? विच इज़ द 7th वन? शुक्र अल्लाह का, मेरे इतना तो पता है। अच्छा, नाउ व्हेन यू एक्सपेंड इट, व्हाट इज दिस? ग्लोब? It's a very ugly circle, I know, but you know, you have to go with this. Yeah, just give me a moment. ठीक है? So, when you expand the group of people, you know, the dynamics of security, they are increasing just like that. ठीक है? जैसे जैसे आपका ग्रुप बढ़ता जा रहा है, आपकी सिक्योरिटी की डायनामिक्स क्या होती जा रही हैं? एक्सपेंड हो रही हैं। सही है, आपकी सिक्योरिटी की डायनामिक्स एक्सपेंड होते जा रही हैं। ठीक है, पहले ज़माने में आपकी सिक्योरिटी ये होती थी। सलीम साहब टिश्यू मिलेगा? ये खाली हो गया। पहले ज़माने में यू यूज़ टू हैव वॉर्स। आपकी सिक्योरिटी क्या होती थी कि आपको वॉर के से जो है वो बचाना, किसी भी स्टेट का जो है वो काम होता था। अच्छा, एक चीज़ बिफोर आई मूव फर्दर, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसका काम है? नहीं, गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट का काम है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट दैट यू नीड टू। हाँ जी बोलिए। सेफ्टी का मतलब, ये सेफ्टी की जो टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली आपकी इंडिविजुअल एस्पेक्ट के ऊपर और आपकी फिजिकल सेफ्टी के ऊपर आती है। जैसे होते हैं ना सेफ्टी कंसर्न्स, लाइक देयर आर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, so they are there installed. Why? Because if in case of fire, human lives can be protected. सही है, but when you talk about security, so it basically deals with a broader context. सही है, आप ह्यूमन सिक्योरिटी की अगर बात करें तो that is something कि you are talking about the threats of getting mugged out, यानी आपको कोई लूट ले उस चीज़ का आपको थ्रेट है, कोई आपको जानी नुकसान पहुंचा दे उस चीज़ का आपको थ्रेट है। ठीक है, कोई आपकी प्राइवेसी को वायलेट कर दे उस चीज़ का आपको थ्रेट है। ठीक है, समझ आ रही है? कोई आपसे स्नैचिंग कर ले किसी भी किस्म की, वो उसको उस चीज़ का आपको थ्रेट है। मतलब 3-4 बड़े, उसके बाद फिर उससे और थोड़ा बढ़ के क्या होता है कि कोई आपकी फैमिली को नुकसान पहुँचा दे, सिक्योरिटी। कोई आपके मुल्क को नुकसान पहुँचा दे, सिक्योरिटी। सही है, तो ये डिफरेंस होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर। समझ आ गई ये बात? ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रही हूँ अगेन, राइट? व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू सर्च इट योर ओन। सही है, बाय, बिकॉज आई कैन बी रॉन्ग एज वेल एंड यू शुड वेरीफाई द फैक्ट्स आई एम टेलिंग यू, इजंट इट? एक चीज़ होती है फैक्ट वेरिफिकेशन। सही है, वट एवर समबडी इज टेलिंग यू, यू शुड ऑलवेज वेरीफाई इट बिफोर forwarding it to somebody else. It could be a piece of information, it could be any video clip, it could be anything, whatever you hear, any stance, whatever you have. सही है, you have this TikTok, you have Instagram, you have so many things. सही है, 10,000 चीज़ें we scroll in a day. सही है, और what we do, we forward it as it is. ठीक है, हम उसको वैसे का वैसे ही आगे पास ऑन कर देते हैं। हमने किसी से कोई चीज़ सुनी, कोलीग्स हैं, कोई बात हो रही है आपस में, स्टूडेंट्स हैं आपस में बात हो रही है, एक ग्रुप के अंदर बात हुई, एक बंदे ने एक बात की। ठीक है,
आपने उस बात को एग्जैक्टली किसी और सेटिंग के अंदर मनोवन वैसे का वैसे ही आपने उस सेटिंग को वो कर दिया, आपने जो है वो वहीं पे वो बात जाके कर दी। अब आपको उस सेटिंग में पता चला या उस बंदे ने कहीं और कर दी, तीसरी जगह पे उसको पता चला कि बेसिकली ये जो बात थी ये तो गलत है, दिस इज़ नॉट राइट, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। सही है, समझ आ रही है बात? तो वो उस वक्त तक कितना डैमेज कर चुकी होगी वो चीज़। सही हमने किया है, कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक आपके जहन में क्या आता है, इसमें आपको कोई चीज़ नई आपने कोई चीज़ सुनी है या आपको महसूस हुआ है कि यार ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था और ये मुझे पता चला है, या फिर ये कि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, जो ऑलरेडी आपकी नॉलेज थी, उस नॉलेज के अंदर आपने वो चीज़ जैसे भूले हुए थे लेकिन वो आपने आज रिकॉल कर लिया, ऐसा हुआ है? हाँ, IR में फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी सुना है यार। आप कहाँ पढ़ते हो? शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में, फेडरल यूनिवर्सिटी में, और पढ़ते हुए IR हो? IR माइनर में रखा है। माइनर में रखा है तब भी? भाई साहब क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? ब्लास्फेमी है ये। This is blasphemy is that you are actually studying, no, I'm really serious about it, that you are studying international relations and that you are not aware of the concept of security as of yet. Security is the basic main idea of international relations, my dear. That I can see that you haven't studied that, but you know, as a student of CSS, okay, let me bring it right here, that despite that whatever the academic background you belong to, you are a student of CSS. You are here to accumulate knowledge about CSS. So you must know whatever you are studying, it has basis. सही है, some sort of basis. तो वो basis आपकी कैसे बनेंगी? आप जो CSS के लिए बुनियाद अपनी बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो ना, एक मेंटल स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो ना आप अपनी इंफॉर्मेशन का, और सारी जो मालूमात हैं और नॉलेज बेस बना रहे हो ना, ताकि आप वो एग्ज़ाम्स दे सको। सही है, तो इट्स लाइक अ कंस्ट्रक्टिंग अ होम, isn't it? Right? So how would you be able to do it exactly without clearing the main concept of that particular subject? Tell me, can you do that? Can any one of us do that? हमें पता है कि हमें एक ये स्ट्रक्चर खड़ा करना है and it requires कि इसकी पहले ना बाउंड्री वॉल खड़ी की जाए which were made of these bricks. ठीक है, तो जब तक वो ब्रिक्स नहीं होंगी कैसे करोगे? खड़ा कर सकते हो हवा में? You want to say something? नहीं, वो आप मुझसे पूछ रही थी ना सबसे कि कुछ क्वेश्चन है या कुछ इंटरकनेक्ट, तो पिछले प्रीवियस लेक्चर के हवाले से एक क्वेश्चन था जो इससे इंटरकनेक्ट हुई। बताइए। जैसे आपने बोला था ना कि हम सैटेलाइट की मदद से मूवमेंट तक हम कैप्चर कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी अगर हम जैसे सैटेलाइट की सिक्योरिटी होती है ना कि हमारे पास अपनी खुद की सैटेलाइट्स नहीं है, हम नासा से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी से नहीं, चाइना से ले रहे हैं। चाइना से, हाँ, तो मतलब हम अपने मिसाइल्स की जो लोकेशंस वगैरह है, जो भी चीज़ है, मतलब मिलिट्री सिक्योरिटी वो किस तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है इंटरनेशनली? ठीक है, वी विल कम अपॉन इट आफ्टरवर्ड्स, बट अभी हम जो है वो बेसिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है इन 21st सेंचुरी, ये वाली जो चीज़ है, पहले जब हम टाइप्स बताएंगे उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। कीप दिस क्वेश्चन, आई विल एड्रेस इट इन द लास्ट क्वेश्चन। सही, अच्छा, बेसिक चीज़ ही हो गई। मैं कहाँ पे थी, क्या बात कर रही थी? हाँ, मैं ये बात बताई थी कि जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हाउ वुड यू बी एबल टू accumulate that entire knowledge, और उसको यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे आप, अपने पेपर्स के अंदर कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे। एक्चुअल तो आपको पेपर्स देने हैं ना, तो बेसिकली अगर आपका पीछे का बैकग्राउंड है IR का, नहीं है कोई मसला नहीं है, आप CSS में तो अपेयर हो रहे हैं ना, CSS तो आपको करना है ना, तो उस CSS को करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए। और अब हम माशाल्लाह इतने बड़े तो हो गए हैं, वैसे मैं तो अभी नहीं हूँ, लेकिन हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम जो है वो चीज़ों को खुद से स्टडी करके उनको कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं, उनको डाइसेक्ट कर सकते हैं, उनको मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके उनको खुद से समझ सकते हैं। आई थिंक वी आर इन दिस स्टेज, इज़न्ट इट लाइक दैट? ठीक है, तो आपको अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। आप रिलाई ना करें कि आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या टीचर क्या पढ़ाएगा, आपको अपनी नॉलेज बेस करनी है, सही करनी है।
आपका क्वेश्चन मैं इनडायरेक्टली थोड़ा सा यहाँ पे एड्रेस करती हूँ। इन्होंने पूछा कि लास्ट क्लास में हमने सैटेलाइट्स की बात की थी, तो थ्रू सैटेलाइट्स नॉन काइनेटिक मीन्स, उसमें एक होता है काइनेटिक मीन्स और एक होते हैं नॉन काइनेटिक मीन्स, ठीक है। दोज हु आर इन द लास्ट क्लास ओनली दे कैन रिलेट, ठीक है। तो उससे उस स्पेस सिक्योरिटी उस चीज़ से जो है वो ये हो सकता है कि हम अपने जो आर्म्स, हमारे जो वेपन्स होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ हैं, ठीक है, स्ट्रेटिजिक वेपन्स जो हैं उनको मूव कर सकते हैं या कोई भी उनके अंदर रद्दोबदल कर सकते हैं, वॉट्स एवर। दिस इज़ द मेन थिंग विच यू आर आस्किंग। सो हाउ डू वी इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ दोज थिंग, आर्सेनल्स की। तो इस पर मैं ये कहूँगी कि अगर आप उस चीज़ को रीड करते जो आई टॉट यू, तो आप ये क्वेश्चन ना करते। वाई? बिकॉज आप सैटेलाइट्स आपके जो पाकिस्तान के अगर उसमें देखा जाए ना, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, तो पाकिस्तान में बेसिकली ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से यू कैन कहीं पे भी इन एंटायर वर्ल्ड यू कैन एक्चुअली डिटेक्ट कि आपके कौन कौन सी जो है वो स्ट्रेटिजिक एसेट्स आपके कहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट दोज स्ट्रेटिजिक एसेट्स, they cannot be operated without manual interference। आप AI के ज़रिए, आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए आप उस आर्सेनल को, सही है, कुछ भी नहीं कर सकते। You cannot harm it, you cannot manipulate it, you cannot reposition it, you cannot launch it। मिसाइल्स लॉन्च होते हैं ना, आपको याद होगा 2019 के अंदर मियाँवाली के में हमारे पास एक जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल ऐसे ही उड़ता, सैर करता हुआ कहीं से घूमता फिरता आ गया था। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल पीछे से ऐसे ही करके आया था, ठीक है, घूमता फिरता ऐसे ही वो निकला था कहीं सैर सपाटे पे, ठीक है। और ये कहा गया था कि वो बेसिकली माल फंक्शन कर गया है, उसकी वजह से इट लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। You know, sorry, I'm phobic to some things। पाकिस्तान उसकी फ़्लाइट को डिटेक्ट कर रहा था। पाकिस्तान was able to detect the flight from the very starting point। जब उसने टेक ऑफ किया था या उसकी फ़्लाइट जब स्टार्ट हुई थी, इन सिंपल लैंग्वेज आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल फॉर यू बिकॉज यू मे नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द डिटेल्स और टेक्निकलिटीज, सही है। जब उसका फ्लाई करना जब वो शुरू हुआ था, किसी भी जगह पे वो ट्रेजेक्ट्री पे जब स्टार्ट किया था, पाकिस्तान वाज लोकेटिंग दैट थिंग, पाकिस्तान वाज एबल टू लोकेट दैट एंड आइडेंटिफाई दैट दिस हैज़ इमर्ज, ठीक है। तो उसने जो है वो आखिर में जाके एक जगह से अपनी पोजीशन चेंज की एंड दैट इंटर्ड इन पाकिस्तान एंड दैट थैंकफुली कि वो क्रैश हुआ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ह्यूमंस वो नहीं थे, पॉपुलेशन नहीं थी, नहीं तो इट वुड हैव बीन कैटास्ट्रॉफिक, राइट। मेरा पॉइंट ये है, आप इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करना कि सैटेलाइट के ज़रिए बेसिकली आपका एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, जो सेंटर्स हैं आपके, उनको होता है, उनके ऊपर थ्रेट है, आइडेंटिफिकेशन का थ्रेट है। ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि लेट्स से कि इफ़ आई हैव एनी स्ट्रेटेजिक वेपन्स राइट हियर, they will know। why? Did I tell you that everything radiates some sort of energy? सही है। तो वो जो आर्सेनल के अंदर जो फ्यूल है या जिस चीज़ से वो बने हुए हैं, दैट इज़ रेडिएटिंग एनर्जी एज वेल, एंड सैटेलाइट एंड अदर मीन्स आर सो मच एडवांस टू डिटेक्ट दैट एनर्जी। वो एनर्जी जो होती है वो किसी तरह की वो एक, हाँ टेक्निकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक सॉर्ट ऑफ लाइट जैसी रेस कर रही होती है, लाइक वी कैन नॉट सी इट बट द रेडार्स एंड मशीन्स कैन बेसिकली, कंप्यूटर्स कैन एक्चुअली डिटेक्ट दैट थिंग। So through that technology we can actually know that these are the strategic locations and there we have some sort of arsenals and whatsoever the thing we have, सही है। However, now I am giving you this answer that we cannot harm if this is an arsenal, सही है, you cannot open it with the satellite technology। मेरा मतलब था कि अब जैसे एक सिक्योर वो होती है ना, स्पेशल एजेंसीज होती है, हाँ, जैसे स्पाइस वगैरह, अब हमारे पास एक लोकेशन है, ठीक है, तो अटैक करने में अगर कोई भी नेबरिंग कंट्री हमारी या एनिमी कंट्री है, तो उसको अटैक करने में ज़्यादा मतलब उनके लिए पॉजिटिव चीज़ नहीं है कि अगर वो अपनी सैटेलाइट से कुछ किसी भी चीज़ की लोकेशन वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है
इंडिया का जो एंटी सैटेलाइट टेस्ट है बेसिकली, वो एंटी सैटेलाइट टेस्ट, एम आई मेकिंग सेंस टू यू और एम आई दैट मच बोरिंग दैट यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर? I want to know as well what exactly you are talking to. Am I making sense? No? Tell me. नहीं समझ आ रहा? Sorry? मुझसे कर लें बात. Talk to me. I am the listener here. मुझसे बात कर लें, मुझसे कोई बात नहीं करता. Please talk to me. अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि बिल्कुल दिस इज़ एन एडवांटेज कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए दे कैन एक्चुअली हार्म आवर फैसिलिटीज़. ठीक है, दे कैन डू दैट. लेकिन हमारा एक अच्छा खासा बजट आर्मी एसएस पे लग जाता है. वी आर गोइंग ऑफ द लाइन. नॉट ठीक है, सिक्योरिटी की बात है. थोड़ा सा टाइम दे दें, पहले इनसे थोड़ी सी बात दे से थोड़ा सा जस्ट गिव मी द टाइम. हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी बेसिकली हम उसी के ऊपर बिल्ड अप ऑन कर रहे थे. अच्छा, सिक्योरिटी की बात हो गई. अब सिक्योरिटी के डायमेंशंस हैं, वो मैंने कुछ थोड़े से, इसलिए इतना आपको समझ आ गया. बेसिकली आजकल की जो सिक्योरिटी है ना, पहले होता था कि आप वॉर से अपने आप को प्रिवेंट करते थे, सही है. अब वॉर्स का ज़माना तो नहीं है. अब तो वॉर्स का ज़माना नहीं है. अब आपने अपने आप को कैसे सिक्योर करना है? अब यू हैव टू सिक्योर योर डिवाइसेस. ठीक है, आपने इस डिवाइस को सिक्योर करना है, आपने अपने कंप्यूटर्स को सिक्योर करना है. ऐसा ही है, बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग विच कैन पोटेंशियली हार्म यू, इजंट इट? सही है. आपके अब जो है आपको पता है कि देयर आर न्यूक्लियर पावर्स. ठीक है, देयर आर कंट्रीज़ विच पोजेस न्यूक्लियर पावर. सही है. तो अगर जंग छिड़ी तो देयर इज़ अ चांस कि आप जो है वो एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वॉर जैसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर लें, हाइपोथेटिकली, जस्ट लाउड थिंकिंग, राइट. उसके नतीजे में क्या होगा कि आप सब मर जाएंगे. सही है. एवरीवन विल बी वैनिश्ड. सो सारे वॉर के नतीजे में एवरीवन विल डाई. ठीक है. तो नो कंट्री वुड अटर दैट बिकॉज दे नो that what happened in Hiroshima Nagasaki, the world cannot afford it. The world is not able to recover from that loss even at this age. ठीक है. क्या we can annihilate the entire world just like that? No, we cannot, and we shouldn't. Let me give you this example. You are hearing about Russia-Ukraine war since so long. सही है. Russia has nuclear warheads and Russia has this nuclear capability. सही है. Did Russia launch anything? Because Russia knows, you know, our region and our entire world is so much connected, and the devastation of atomic or nuclear weapons is so much that you can't even, you know, there will be 10 years of entire cold, you know, this what would you say, अगर इन केस अगर कहीं से कोई न्यूक्लियर वेपन लॉन्च होता है या कोई वॉर होती है, हाइपोथेटिकली, अल्लाह ना करे, ठीक है, आपको पता है 10 साल तक सिर्फ एशेज़ ही रहेंगी. सिर्फ एशेज़, सिर्फ क्लाउड्स, कुछ भी नहीं, कंप्लीटली सर्दी. नहीं, पूरी दुनिया में हवा तो चलती है ना. सॉरी, नहीं, मैं इंटायर बात कर रही हूँ कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो उससे, अगर लेट्स सपोज कि आप एक न्यूक्लियर वेपन भी लॉन्च करते हैं, लेट्स जस्ट गिव दिस एग्जांपल, आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, सही है, या चाइना इंडिया की बात करते हैं, लेट्स सपोज, आपको लगता है कि आप एक रीजन के ऊपर अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स यूटिलाइज़ करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो क्या वो वो क्या सेकेंड स्ट्राइक नहीं करेंगे? दे विल डू दैट. और उसके नतीजे में आपकी जो पॉपुलेशन है, लेट्स हैव दिस थिंग कि यू आर एबल टू एलिमिनेट देयर C3, आपका कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. सही है. आप उनके सारे, आपने जो है ना वो जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी आपकी काउंटर फोर्स के नतीजे में वो सारी चली गई हैं. ठीक हो गया. तो आपको नहीं लगता कि वो उसकी जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा दैट वुड हार्म पाकिस्तान? एक और, इसको मैं कैसे बता रही हूँ, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बेसिकली दे आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? विच आर द कंट्रीज हु कंट्रीब्यूट कार्बन डाइऑक्साइड द मोस्ट? सॉरी, सेंट्रल एशियन, इडियट.
US, UK, Germany, Canada somehow, China, सही है, France, ठीक है. Why? Because these countries are producing so much, like they are producing so much. ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, वो प्रोड्यूस करती हैं. उससे पहले जो है वो उनका जो पूरा एनर्जी ट्रांजिशन था, कोल के ऊपर वो एनर्जी जनरेशन कर रहे थे ना. फिर आ गया आपका फॉसिल फ्यूल. आपको ये भी पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी पढ़ना है कि हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट चेंज इन इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है, industrial revolution is one thing which we will discuss in some other class. What my point was that these are the countries like US and other countries are contributing carbon dioxide because they are producing so much, right? And they are making their energy generation is based upon coal and fossil fuels. सही है? What we had suffered from in 2022. हमारी contribution कितनी है पाकिस्तान की? Does anyone know that? Are you guys even CSS students, huh? Exactly. It's not even 0.5% of what the other countries are contributing. However, we were the ones who were actually suffered from the havoc which was unleashed by the climate crisis. ठीक है? तो that was a ripple effect. सही है? तो that ripple effect will come in other forms as well. It's not the climate. एक क्लाइमेट चेंज एक चीज़ नहीं है. हम जो न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं तो इसका भी रिपल इफेक्ट आएगा ना. एक चीज़ आपकी क्लाइमेट मतलब आप जो है वो इंड्यूस है, एक चीज़ आपके दूसरे कंट्रीज जो है वो ये काम कर रहे हैं, उसके नतीजे में सफ़र जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा करना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव सोर्सेज टू सिक्योर देमसेल्व्स. ठीक है, और देयर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सम मीनिंग्स. ठीक है, उसके नतीजे में सफ़र हम करें तो आपको नहीं लगता कि जब हम उनकी तरफ कोई चीज़ लॉन्च करेंगे तो दैट विल अफेक्ट अस एज वेल इन सम वे और अदर. ठीक हो गया? ऐसा ही है. समझ आ रही है कोई बात कि मैं क्या बात कर रही हूँ? पॉइंट समझ आ रहा है? देखो, पहली बात तो ये कि स्टेट का काम है सिक्योरिटी फराहम करना. ठीक है, और सिक्योरिटी क्या होती है? द सेंस ऑफ लिविंग विदाउट डेंजर, विदाउट थ्रेट. अग्री? ओके. Now second thing is that as much as the group of people extend, the dynamics of security expand. ठीक है, directly proportional है. That we have mentioned right there. आपके ट्राइब्स में आप रहेंगे, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी कम रहेगी. आप जो है वो कंट्रीज़ के अंदर रहेंगे, आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. डायनामिक्स, सिक्योरिटी की जो डायनामिक्स हैं वो आपकी एक्सपेंड होंगी. देन यू कम अप ऑन द रीजन, आपकी रीजनल डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी. देन यू कम अप इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, आपकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी की डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी. ठीक हो गया? इतनी बात, ये 2 पॉइंट अभी समझ में आ गए. नाउ थर्ड थिंग इज दैट अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक दैट वी हैव टू सिक्योर आवरसेल्फ फ्रॉम वॉर्स. ठीक है, नाउ टेल मी एवरी वन ऑफ यू, एंड यू शुड हैव अ डिफरेंट आंसर. एवरी वन ऑफ यू शुड हैव अ डिफरेंट आंसर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा. नाउ टेल मी, हाउ वुड यू सिक्योर योर सेल्फ फ्रॉम any epidemiological disease like COVID-19? Starting from you, sir. Safety precautions. Can you protect yourself from a disease like COVID-19? Yes or no? Can you? हम कहीं भी रहें, we humans, as a human. Yes, you, sir. Sorry. यार yes और no में बताएं ना. No और yes कर सकते हैं? कर सकते हैं कैसे? Go into the bunkers. गोइंग इन टू द बंकर. सही है, तो आपको लगता है कर सकते हैं. कितने दिन तक? बेस्ट. कितने दिन तक? लाइक फॉर हाउ लॉन्ग? ए वेट. सो ओके, लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल. So you have this bunker, you are living in this space, right? This is your place, this is your house. सही है. You have a certain amount of ration over here.
यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ सप्लाईज ओवर हियर, सही है। आपके यहाँ पे जो है ना कुछ सप्लाईज, खाना और बाकी जो नेसेसिटीज़ हैं वो रखी हुई हैं, एंड यू आर लिविंग हियर, सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड वंस दिस सप्लाईज गॉट फिनिश्ड, व्हाट एग्जैक्टली यू गोना डू? हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव? जब तक तो कुछ तैयार कर रखा और बाद होगा नो नो, हमेशा के लिए। I am just asking that can you, let's say कि there is this news right now, अगले आधे घंटे के अंदर एक न्यूज़ ऐसे स्प्रेड हो जाए कि there is a virus which is spreading, which is airborne, ठीक है, हवा में फैल रहा है। airborne का मतलब होता है हवा के ज़रिए, ठीक है, airborne है, और वो जो है ना आपका फैल रहा है, तो आधे घंटे के अंदर, एंड यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ, यू हैव टू सिक्योर योर सेल्फ, व्हाट वुड यू डू? यू वुड गो टू योर होम्स, अपने अपने घरों में जाएंगे ना, सही है, अपने अपने घरों में जाएंगे। हमारे घरों में कितना राशन होगा, कितने दिन की हमारी सप्लाईज होंगी? 1 महीना रफली, लेट्स अज्यूम 1 महीना। दैट इज़ माई पॉइंट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। You cannot save yourself from anything which is a threat, which is a global threat, सही है, that would equally harm you and you would equally suffer from that thing. That is the answer, that you cannot protect yourself from anything like COVID-19 in this era, because that's airborne, that is spreading continent to continent, right? सही है, समझ आ गया? नहीं, पाकिस्तान में कैजुअलिटीज़ कम हुई, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मैनेज किया। मेरा सवाल ये है, और मैं आपको इम्प्रेशन ये देना चाह रही हूँ कि कोई भी ऐसी थ्रेट, पहले तो हम समझते थे कि एक वॉर ही है ना थ्रेट, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दिस इज़ अ थ्रेट, दिस इज़ अ मॉडर्न डे थ्रेट, ठीक है। कोविड-19, कोई भी ऐसे डिजीज़, ठीक है।